Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the rate of chemical reaction and factors affecting on it. Let's start. Assalamu alaikum ji. In this video, we are going to discuss reaction kinetics. Beta, reaction kinetics comes from the movement, in motion. तो reaction जब अपनी motional state में होता है, when it is in the moving state, तो उसकी speed वेरी करती है, उसकी स्पीड पे क्या अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, and how can we calculate the rate of reactions. So all these things we will cover in reaction kinetics. So first thing कि rate of reaction होता क्या है बेटा, that is also known as speed of reaction. बेटा reaction होता क्या है, सबसे पहले तो reaction का पता होना चाहिए, what is reaction. So first thing which came in our mind, that is the change in concentration. बेटा sometimes अगर आपसे reaction का पूछा जाता है ना, तो students always give answer in this way कि when reactants reacts together to form a product, so ये reaction है. So बेटा sometimes ऐसा भी तो होता है, products can recombine to form reactants again. तो reversible reactions भी तो कुछ होते हैं. So जिस B type का reaction है, in every type of reaction we will observe the change in concentration. जो भी reactants हैं, जो भी substances हैं हमारे पास, बेटा उनकी concentration में variation आती है. So can I write in this way कि reaction is change in concentration? Yes. So change in concentration, this is called reaction. So change in concentration with respect to time, that is called as rate of reaction. Okay, so for example, we have a substance A, we have plus B, and it is converting into C. This is a particular chemical reaction. बेटा initially तो हमारे पास होते हैं just reactants. We don't have any product in the beginning when the time is 0. So for example, you have 5 moles per cubic decimeter of A. You have 10 moles per cubic decimeter, that is the unit of concentration. B, initially तो आपके पास है 0 product. With the passage of time, reactants की concentration decrease करती जा रही है. It comes over 2, it comes over 8 या 7 या 6 moles per cubic decimeter पे आ गई, and you are getting something in the form of product. तो यहाँ पे for example, you are getting 5 moles per cubic decimeter. ये आपके पास प्रोडक्ट्स बने हैं. Although ये 7 होना चाहिए था, लेट्स सपोज कि 2 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर कहीं पे लॉस हो गया है, कोई गैशियस प्रोडक्ट बना, वो सिस्टम से रिलीज हो गया, या साइड रिएक्शन की वजह से, ह्यूमन एरर्स की वजह से ये मैकेनिकल लॉसेस होते हैं. एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन द थियोरेटिकल यील्ड. सो इट इज 5 या 6 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, बट यू आर गेटिंग समथिंग. सो बेटा चेंज तो हो रहा है ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में भी चेंजिंग आ रही है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में भी चेंजिंग आ रही है. सो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन. ठीक है, जहां पे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स किसी की भी कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ जाए, और अगर ये चेंज आ रहा है विद इन 5 सेकेंड्स और सेम यही रिएक्शन प्रोसीड किया जाता है एंड सेम प्रोडक्ट की अमाउंट वी आर गेटिंग इन 3 सेकेंड्स, सो ऑब्वियसली 3 सेकेंड्स में जो रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है, दैट हैज ग्रेटर स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है. सो बेटा कैन आई राइट इन दिस वे के रेट ऑफ रिएक्शन
is equals to delta C over delta T. Delta C is mole per cubic decimeter. जो चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट होता है दैट इज mole per cubic decimeter. And delta T is the time. तो टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा? सेकेंड. सेकेंड इज इन द डिनोमिनेटर, so that is divided by second, or we can write in this way second per second. ठीक है? So this is the unit of rate of reaction. So beta there are two types, various types होती हैं जिनमें से we have to discuss the average rate of the reaction and instantaneous rate of reaction. बेटा एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और इनमें से कौन सा ज्यादा फास्टर होता है? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो है एवरेज रेट. एवरेज रेट हमेशा लिया जाता है टू स्पेसिफिक पॉइंट्स पे से. एवरेज रेट ऑलवेज टेकन इन बिटवीन द टू पॉइंट्स. अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेटा वो होगी एवरेज रेट. और किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हो एट 1 पॉइंट, तो बेटा दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस and I am just drawing the random value. A curve आपके पास आई है. These are the points. Over here we have concentration. On this side we have concentration on the y-axis. On the x-axis we have time, t. These are the points. टाइम के भी लगा लें. These are the points of reactants. जो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में कंसंट्रेशन को मैंने लिया. With the passage of time we are observing कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है. So बेटा अगर आपको कहा जाता है कि सेकंड पॉइंट पे बेटा स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे बताएं स्पीड क्या है, will take delta only the concentration at this specific point divided by time. जो यहां पे आपको टाइम इसके अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है, that will give you the instantaneous rate. और अगर आपको कहा जाता है एवरेज रेट को कैलकुलेट करें, इन दैट वे वी हैव टू यूज 2 पॉइंट्स. इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में देन वी हैव टू ऑब्जर्व द चेंज इन कंसंट्रेशन. इन दोनों के दरमियान में कितना कंसंट्रेशन का चेंज आया है और कितना टाइम का चेंज आया है. इन दैट वे वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन. अदरवाइज एक ही पॉइंट पे निकालना है तो कंसंट्रेशन उसी पॉइंट की और उसी पॉइंट का टाइम डिवाइड कर दो, यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, एवरेज रेट ज्यादा प्रिसाइज होता है, इंस्टेंटेनियस रेट प्रिसाइज नहीं होता. दैट इज अनदर डिफरेंस. ठीक है, इट इज मोर प्रिसाइज, लेस प्रिसाइज है. हमेशा अगर स्टार्टिंग में आप ऑब्जर्व करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो इंस्टेंटेनियस रेट, तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा ज्यादा होता है बिगिनिंग में. इन द बिगिनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज हायर, इज ग्रेटर, बट जो एंडिंग स्टेज होएगी बेटा वहां पे एवरेज रेट ज्यादा होता है. ठीक है, in the beginning instantaneous rate is greater, और स्टार्टिंग में एवरेज रेट कम होता है. एवरेज रेट
इज लेस। ये कहां की बात कर रहे हैं बेटा? स्टार्टिंग में। आहिस्ता आहिस्ता इंस्टेंटेनियस रेट कम होता रहता है और एवरेज रेट इंक्रीज करता रहता है। और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज व्हेन द टाइम इज जीरो। सो जब टाइम अप्रोचेस टू जीरो होएगा, एट दैट पॉइंट बेटा एवरेज रेट becomes equals to instantaneous rate. So this is the important MCQ. Average rate और instantaneous rate कब zero होते हैं? When the time of the reaction approaches to zero, at that point average rate और instantaneous rate एक दूसरे के equal हो जाते हैं. Now moving towards the factors affecting on speed of reaction, on rate of reaction. So beta, first point is nature of reactants. Obviously किस तरह के reactants यूज किए जा रहे हैं वो speed of reaction पर affect करेंगे. For example, you have group 1 metals and group 2 metals. Beta, group 1 metals are very reactive. Group 1 के जितने भी metals हैं they are reactive, more reactive होंगी rather than group 2. ठीक है, group 2 और group 1 में से group 1 ज्यादा reactive है. That is the nature of the reactant. If I am using group 1 metal और उसका कोई reaction हम करते हैं, so it will show explosive reactions. और please remember these points के group 1 की जो metals होती हैं they are soft, they can cut with the knife. वाटर में अगर फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स को ऐड किया जाए पानी के अंदर बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हमें लगता है कि यहाँ पे पानी में आग लग गई है. सो मैजिशियंस डू दीज थिंग्स. फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स को पानी के अंदर फेंका और पानी के अंदर आग लग गई. सो दिस इज नॉट मैजिक बट द केमिकल रिएक्शन बिहाइंड दैट. सो ग्रुप 1 की मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं. इसी तरह से ग्रुप 2 की उससे रिलेटिवली स्लो है. ग्रुप 3 की जो मेटल्स होंगी वो उससे भी ज्यादा स्लो है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. सो जिसके कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो दैट्स व्हाई दे आर शोइंग द फास्टेस्ट रिएक्शंस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और हमारे पास covalent compounds होते हैं. Ionic compounds show ionic reactions. Covalent compounds show molecular reactions. So बेटा जितने भी ionic reactions होते हैं they are faster. Ionic reactions fast होते हैं. So ionic reaction show कौन करते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स मोस्टली. ठीक है, सो जब आयंस में डिसोसिएशन हो रही होती है वो रिएक्शंस फास्ट होते हैं और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होते हैं दैट इज स्लोअर देन द आयनिक रिएक्शंस जिसमें आयनिक कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, यानी कि ये भी रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है. सिमिलरली बेटा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज स्लोअर. डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिलेटिवली फास्टर होते हैं. Whereas oxidation and reduction that is slower. So बेटा nature of reactants पे भी डिपेंड करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का हम रिएक्टेंट यूज करें. फॉर एग्जांपल अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए, we have fluorine, we have chlorine, we have bromine, we have iodine. So beta group 7 में से which can show the fastest reaction? Obviously जो fluorine है. F2 that is the gas. Chlorine is also a gas. Bromine is
अ लिक्विड रेडिश ब्राउन लिक्विड है जो कि रूम टेम्परेचर पे होगी. आयोडीन दैट इज सॉलिड, सबलाइम सॉलिड होता है. सो बेटा सॉलिड्स का रिएक्शन जरा स्लो होता है. ब्रोमीन दैट इज लिक्विड, लिक्विड उससे रिलेटिवली ज्यादा तेज रिएक्शन शो करेगी. क्लोरीन उससे ज्यादा तेज रिएक्शन शो करेगी. फ्लोरीन के रिएक्शंस विग्रस होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, और हाइड्रोजन और क्लोरीन को, या हाइड्रोजन और ब्रोमीन को, हाइड्रोजन और आयोडीन को, बेटा आउट ऑफ दीज ऑल रिएक्शंस जो फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में, दैट इज फास्टर देन द रिमेनिंग रिएक्शंस. तो इट मींस reaction depends upon the reactant. स्पीड ऑफ रिएक्शन वेरी करती है किस तरह का रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो. गॉट इट. अब अगर ग्रुप 1 की मेटल्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यू हैव सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम which can react faster with the water. बेटा प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ग्रुप 1 में फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है. सो अगर ग्रुप 1 की बात की जाए, सो जितना नीचे होएगा एलिमेंट, जितना साइज उसका ज्यादा होएगा, इट शोज द फास्टेस्ट रिएक्शन. सो ग्रुप 1 में से बेटा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में से which one can show the fastest reaction? This is what you have to answer us in the comment box. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन है इसी से रेलेवेंट, हैलोजेंस में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है. Why फ्लोरीन is showing the fastest reaction? ठीक है. आंसर मैंने बता दिया है कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन के रिएक्शन ज्यादा विग्रस होंगे, फास्ट होंगे. Why this is so? आपने इसकी रीजन मेंशन करनी होगी कमेंट बॉक्स में. ठीक है जी. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड फैक्टर, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या कहा है जी? अगर कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो व्हाट विल हैपन? बेटा वी विल हैव मोर मॉलिक्यूल्स. कंसंट्रेशन का मतलब हुआ अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम. अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. बेटा ये इंक्रीज कर जाएगी. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए हैं इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स वी हैव फॉर एग्जांपल 5-6 मॉलिक्यूल्स. अगर मॉल इंक्रीज कर दूं और वॉल्यूम इतना ही हो, सो बेटा कहां पे कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली इन द सेकंड वन. ठीक है. तो बेटा जब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, सो देयर आर मोर चांसेस कि पार्टिकल्स विल कोलाइड टुगेदर. बेटा रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है कोलिजन थ्योरी पे. व्हाट इज कोलिजन थ्योरी? कि पार्टिकल्स हैव टू कोलाइड टुगेदर. जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं उनकी कोलिजन होती है. सो देयर आर सम कोलिजन्स which can convert into the effective collision. Effective collision क्या होती है? That can give you the products. ऐसी collisions जिसमें एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए. So that is called as effective collision, successful collision. तो बेटा only successful collision जो होती हैं, जो effective collision होती हैं, वही प्रोडक्ट बना सकती हैं. ठीक है. So amount of particles per unit volume जब इंक्रीज होएगा, so we can say effective collision per unit time increases, or you can say frequency of effective collision increases. क्या हम कह सकते हैं? Frequency of effective collision increases. Frequency of effective
कोलेजन इंक्रीज कर जाती है। बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन जब भी इंक्रीज करती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। सो इन दिस वे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो कंसेंट्रेशन के इंक्रीज होने से अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दैट शोज यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन इंक्रीजेस। इस टर्म की जगह पे आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, अफेक्टिव कोलेजन पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ रिलेशनशिप है हमेशा रेट का। जब रेट की बात कर रहे हैं सो इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द टाइम। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन इंक्रीज हो जाएगी, व्हिच एक्चुअली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तभी होएगा जब प्रोडक्ट्स बनेंगे। अफेक्टिव कोलेजन की वजह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनफेक्टिव कोलेजन या अनसक्सेसफुल कोलेजन अगर होती रहेगी, दैट कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्टेंट्स वापस बाउंस बैक हो जाते हैं। जब इनफेक्टिव कोलेजन होएगी, अनसक्सेसफुल कोलेजन होएगी, पार्टिकल्स विल कोलाइड टुगेदर एंड दे विल बाउंस बैक, दे विल नॉट कंबाइन टुगेदर, और नया मॉलिक्यूल नहीं बनता। और जब तक नया मॉलिक्यूल नहीं बनेगा सो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थिंग। सो इसी के साथ एक पॉइंट ऐड करूंगा, की पॉइंट एमसीक्यूज के लिए। बेटा जब गैसेस की बात की जाती है ना, गैसेस में जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो बेटा वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है पार्शियल प्रेशर उसका इंक्रीज हुआ है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर द गैसेस, गैसेस के लिए बता रहा हूं। जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज विथ पार्शियल प्रेशर। ओके, सो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया मींस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, अमाउंट इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो गई है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट। बेटा व्हाट इज लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट में क्या होता है, ऐसा एनर्जी का सोर्स क्या है? लाइट हैज फोटॉन्स। लाइट में क्या होते हैं बेटा? फोटॉन्स। नाउ व्हाट आर फोटॉन्स? फोटॉन्स आर एक्चुअली स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। तो अगर एक रिएक्शन चल रहा है और आप वहां पे लाइट को फॉल करते हो, एक्चुअली लाइट के फॉल करने से व्हाट इज हैपनिंग? फोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। लाइट अगर फॉल कर रही है पार्टिकल्स पे, एक्चुअली फोटॉन्स आके उन पे टकरा रहे हैं, फोटॉन्स उन तक पहुंच रहे हैं। और फोटॉन्स के इंक्रीज होने का मतलब है, फोटॉन्स होते क्या? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, फोटॉन्स आर स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। तो फोटॉन्स के फॉल करने का मतलब है कि एनर्जी पैकेट्स वहां पे आके फॉल कर रहे हैं एंड पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी। सो वो एक्साइटेड हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन उनका ज्यादा क्यों होएगा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। स्मॉल एनर्जी पैकेट जैसे ही फॉल करेंगे रिएक्टेंट्स पे, देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। और बेटा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाए तो व्हाट विल हैपन? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि लाइट इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स विच आर एक्चुअली नोन एज फोटॉन्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। सो बेटा टेल मी व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? वी नो कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट एक्चुअली डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे अगर हम
बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें, इफ यू हैव दिस रिएक्शन कर्व, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो बेटा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियली ये थी, दिस वन इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। सो बेटा जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक्चुअली कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। होता क्या है, इन दिस रीजन वी हैव दोज पार्टिकल्स विच आर हैविंग एनर्जी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। और बेटा ऐसे रिएक्टेंट जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है, ओनली दोज पार्टिकल्स आर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो वो अफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन वी आर नॉट यूजिंग एनी कैटलिस्ट। और जैसे ही हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। सो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे आ गई। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग कैटलिस्ट। दिस इज विद कैटलिस्ट। हम जनरल स्टेटमेंट तो पढ़ते हैं, बाय यूजिंग द कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होता है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर हैविंग ग्रेटर एनर्जी देन द एक्टिवेशन एनर्जी नाउ। सो ये भी तमाम पार्टिकल्स अब उन पार्टिकल्स में इंक्लूड हो जाएंगे विच कैन शो द अफेक्टिव कोलिजन। और जितनी ज्यादा अफेक्टिव कोलिजन होएगी उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करता हूं, इफ वी हैव अ नेगेटिव कैटलिस्ट दैट इज शोइंग यू द रिवर्स प्रोसेस विच डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, उनको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट जनरली यूज किया जाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करने के लिए इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, और देयर आर वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन जिनमें कैटलिस्ट इज यूज एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। सो कैटलिस्ट जब हम ऐड करते हैं, व्हाट विल हैपन, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज करने से क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगी। और बेटा जब इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाता है, इन दैट वे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। All right. So now we have a next point, that is temperature. टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ? बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स को। फॉर एग्जांपल यू हैव अ रिएक्शन इन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट आपने एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है एंड यू आर टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो कि वार्म करना होएगा, और यू कैन यूज एनी अदर, मैग्नीशियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम सल्फेट आप बनाना चाहते हो, सो वी हैव टू टेक मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दैट केस और सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने एक्सेस अमाउंट में लिया, सल्फ्यूरिक एसिड आपको वार्म करना होएगा so that it can give you the specific amount of energy ताकि मुकम्मल तौर पे रिएक्शन पॉसिबल हो सके। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली इंक्रीज होता रहता है। सो हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। when the temperature increases, rate of reaction increases। समटाइम्स स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस की स्पीड इंक्रीज करती है और एक्सोथर्मिक की डिक्रीज करती है। बेटा दिस इज नॉट इन अ वे। रिएक्शन कोई भी होगा,
टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उसकी स्पीड बढ़ेगी, बट इट डिपेंड्स कि बेटा इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो दैट इज फेवरेबल फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन. जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, particles will get the kinetic energy because temperature is directly proportional to kinetic energy of the molecule. So जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, what will happen? टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, what will happen? Particles are getting more energy and they will move faster. और जब फास्ट मूव करेंगे, there are more chances कि they will collide together. उनकी कोलाइजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और जब कोलाइजन के चांसेस इंक्रीज होंगे, इन दैट वे फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन इंक्रीज हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन इंक्रीजेस. और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन इंक्रीज हो जाती है तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. सो यहां पे एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप याद रखें कि जब 10 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सो बेटा स्पीड में ऑलमोस्ट डबल तक इंक्रीमेंट आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है डबल तक. सो यहां पे क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या होएगा? जब 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन. जनरली तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, लेकिन कितना? सो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. ये की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इससे रेलेवेंट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर 10 केल्विन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा. अगर 20 केल्विन इंक्रीज होएगा तो रिलेशनशिप उसी के साथ आपने ऑब्जर्व करते रहना. ठीक है, सो वी डिस्कस द लाइट ओवर हेयर. लाइट से एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यूज किया जा सकता है कि जब फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन इंक्रीज हो जाती है. सो इन दैट वे बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है. सो यहाँ पे एक टर्म मैंने ऐड की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की. दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए. दिस इज द स्टेट जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है और बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हाइड्रोजन एंड यू हैव क्लोरीन मॉलिक्यूल, दे आर रिएक्टिंग टुगेदर. तो सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुए, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुए. होता क्या है, पहले बॉन्ड ब्रेकेज होनी होती है एंड दे हैव टू कन्वर्ट इनटू द एटम्स. तो बेटा ये बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है, सिमिलरली क्लोरीन के पार्टिकल्स भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और हाइड्रोजन क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन भी हो रहा है. हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के पार्टिकल के साथ कंबाइन भी हो रहा है. तो बेटा ये जो स्टेट होती है जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों हो रही होती हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. दिस वन इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इसके बाद जो स्टेट आती है दैट इज द प्रोडक्ट स्टेट. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब कंबाइन हो जाते हैं, सो HCl बन जाएगा, तो वो हमारी होती है प्रोडक्ट स्टेट. HCl प्लस HCl, तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. गॉट इट? सो ये जो सेंट्रल स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे जो अफेक्ट करता है, इज सरफेस एरिया. बेटा
सरफेस एरिया इवेपोरेशन के साथ भी आपने इस पॉइंट को डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में। इवेपोरेशन इंक्रीजेस जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसमें एग्जांपल दी जाती है, इफ यू हैव अ कप ऑफ टी, तो उसको उसकी इवेपोरेशन में, उसको ठंडा होने में इट इज टेकिंग मोर टाइम, और इफ यू हैव अ बाउल ऑफ टी, सो वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सो इट इवेपोरेट्स क्विकली और जल्दी ठंडी हो जाती है। सो सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहां पे सरफेस एरिया के लिए भी है। सरफेस एरिया में जितना सरफेस एरिया पार्टिकल ज्यादा कवर करेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा। इट मीन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। बट व्हाई, या किस तरह से, अब उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। सो बेटा सरफेस एरिया कौन से पार्टिकल ज्यादा कवर करेंगे, जो बड़े साइज में होंगे या स्मॉल साइज में होंगे। इफ यू हैव अ लंप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेटा ऑल्दो ये लंप है, एक ढेले की फॉर्मेशन है, सो इसमें सरफेस एरिया बहुत कम कवर किया जा रहा है। दिस इज द पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर मैं यूज कर रहा हूं यहां पे स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्मॉल pieces of calcium carbonate, ये स्मॉल पीसेस है हमारे पास, सो उतना ही पार्टिकल इट इज कवरिंग द मोर सरफेस एरिया नाउ। सो बेटा जितना ही सरफेस एरिया ज्यादा कवर होता जाएगा उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स विल गेट द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस, और सरफेस से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, वही एनर्जी आगे ट्रांसफर होती रहती है। इन दिस वे द साइज ऑल्सो मैटर्स। जितना स्मॉल साइज होएगा रिएक्टेंट्स का, उतनी ही वो ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेंगे, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर होएगा उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग एनर्जी एंड दे विल मूव फास्टर, और ज्यादा कोलेजन के चांसेस होंगे, इफेक्टिव कोलेजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इन अ सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सरफेस एरिया। ठीक है, जो कि रिलेट करवाना है आपने साइज ऑफ द पार्टिकल्स के साथ। साइज ऑफ पार्टिकल जितने स्मॉल है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा, दैट इज हैविंग द इनवर्स रिलेशन। और रीजन क्या है, बिकॉज दे विल ऑक्यूपाई मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा करेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। सो वी कवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। कब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, कब कौन सा रेट ज्यादा होता है, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, इंस्टेंटेनियस की या एवरेज की, एंड वी हैव discussed the factors affecting on the rate of reaction. If you have any query regarding any topic, any concept, तो do let us know in the comment box, ताकि हम आपकी queries को feedback दे सकें और आपकी queries resolve की जा सकें। So बेटा now have a look over the topic कि किस तरह से हम rate of reaction को calculate कर सकते हैं। We have different methods, कुछ केमिकल मेथड्स हैं और देयर आर सम फिजिकल मेथड्स एज वेल। पहले हम केमिकल मेथड को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर परफॉर्मिंग एनी केमिकल रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड यू आर गेटिंग सम डेटा कि किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन में वेरिएशन आ रही है। फॉर एग्जांपल इनिशियली you have this reactant 0.1 mole per cubic decimeter, we have PCl5 स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पे, ठीक है। PCl5 है 0.1 and we don't have any PCl3 and Cl2 at that time because we have only reactants at that time. With the passage of time, concentration of PCl5 decreases. ये यहां तक आ गई, दैट इज 0.08। कितने सेकंड्स के बाद? आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड्स के साथ।
I have taken time on the on the x-axis and concentration of PCl5 जो कि हमारा reactant है in this chemical reaction. I have taken that on the y-axis. This is y-axis. This is your x-axis. X-axis पे time लिया गया है seconds में. Each small point is showing you 10 seconds on the x-axis, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 seconds. In a similar way, y-axis पे we have taken mole per cubic decimeter concentration of the PCl5, 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, that is 10, ठीक है? So, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है? सो एट दिस पॉइंट वी हैव कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 0.6 और टाइम कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 27 के आसपास, ठीक है? सो विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिक्रीज हो गई एंड at this point we have approximately 50 seconds or 0.04 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास कंसंट्रेशन रह गई. सो बेटा किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को? सबसे पहले तो हमने उस डेटा के अकॉर्डिंगली प्लॉट किया ग्राफ को और यहां से फिर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है. दैट टेंजेंट व्हेन पास, तो यहां पे एक स्लोप ये जो बनी है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें. सो बेटा राइज ओवर रन दैट इज एक्चुअली योर स्लोप. तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट के कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, और कितना टाइम में चेंज आ रहा है, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड आउट आवर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? कितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग बेटा टाइट्रेशन मेथड भी तो होता है हमारे पास. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. सो उसमें विल परफॉर्म मोस्टली टाइट्रेशन मेथड न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड और बेस. एंड मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि बेस सॉल्यूबल होनी चाहिए और सोडियम के कंपाउंड्स या सॉल्ट्स बनाने के लिए या पोटेशियम के और सोल्यूबल एसिड्स और सोल्यूबल बेसेस जब रिएक्ट करती हैं, सो बेटा जो सॉल्ट बनता है बेटा इस परफॉर्मेंस के लिए, इस प्रैक्टिकल के लिए हम टाइट्रेशन मेथड को यूज करते हैं. सो टाइट्रेशन मेथड में भी तो एसिड की कंसंट्रेशन वेरी करती है. जब फिनोल्फथलीन और वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर और थाइमोल्फथलीन या फिनोल्फथलीन यूज किया जाता है, तो बेटा इन दोस केमिकल रिएक्शंस इंडिकेटर का कलर जैसे ही चेंज होता है बाय एडिंग एसिड इन दैट, तो वो हम वॉल्यूम को भी नोट डाउन करते हैं कि इनिशियली कितना एसिड का वॉल्यूम था ब्यूरेट में और आफ्टर द प्रोसेस जब कलर चेंज हो गया है सो कितना एसिड यूज हो गया है. सो टाइट्रेशन मेथड इज अनदर वे टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? सिमिलरली we have some physical methods as well. यहाँ पे ये जितने भी methods हैं, these are physical methods. Number one is spectrometry, जिसमें बेटा apparatus use किया जाता है spectrophotometer. That is actually the sum of two meters, spectrometer और photometer. इन दोनों की combination से ये बनता है spectrophotometer, ठीक है? So spectrophotometer में किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट किया जाता है? इट एक्चुअली गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस, कि किस अमाउंट की रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं. आइदर वी हैव रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. यूवी रेडिएशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ स्मॉल होती है. ऑन द अदर हैंड वी हैव आईआर रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. सो बेटा जो स्पेक्ट्रोमीटर बताता है अमाउंट ऑफ रेडिएशंस कितनी एब्जॉर्ब हुई हैं. जितनी ज्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होएगा, बिकॉज रेडिएशन इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? रेडिएशन जब फॉल कर रही है
तो एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है मॉलिक्यूल्स को, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस होंगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस डिटेक्ट की जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कि कितनी एब्जॉर्ब्ड हुई है, और एब्जॉर्बेंस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन. सो बेटा एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशंस is directly proportional to rate of reaction. Got it? So second method है हमारे पास electrical conductivity method. The word itself defines the method जिसमें हम यूज कर रहे हैं कंडक्टोमीटर. कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कही जा रही है. इफ वी हैव अ सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन में क्या ऐसी चीज होएगी विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? वी हैव फ्री आयंस. ठीक है, और अगर मेटल्स होती हैं तो मेटल्स में कैरियर होता है कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस. ठीक है, किनकी हम बात कर रहे हैं? हम सॉल्यूशंस की. सो बेटा सॉल्यूशंस में जितने आयंस ज्यादा होंगे, जितना सॉल्यूशन आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा सॉल्यूबल होएगा उतने ही ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे. जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा है. फॉर एग्जांपल यू हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड्स. फॉर एग्जांपल यू हैव HCl एंड यू हैव CH3COOH, दैट इज एथेनोइक एसिड. बेटा एथेनोइक एसिड will give us less hydrogen ions, जिसको हम कहते हैं partial ionization. तो बेटा वहां पे rate of reaction जरा slow होता है. For example, you have HCl. तो HCl के जितने भी molecules होते हैं बेटा वो ionize हो जाते हैं. They exist in the form of ions, not in the form of molecules. So सारे ions जब मौजूद हैं हमारे पास in the solution, so हम कहते हैं that is showing complete ionization. On the other hand, अगर आप बात करते हैं एथेनोइक एसिड की, CH3COOH, some of the molecules of ethanoic acid will dissociate into the ions and some of the molecules will left behind in the form of molecules, जिसकी वजह से हम कहते हैं that is showing you the partial ionization. ये होता है मतलब partial ionization का कि कुछ molecules dissociate हुए हैं अपने ions में, and there are some molecules, for example this molecule is not dissociated into the ion, ये molecular state में ही है. So बेटा ऐसे जो एसिड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स. सो बेटा यहां पे वी ऑब्जर्व कि देयर आर लेस आयंस एंड इन दिस केस वी हैव मोर आयंस, सो दैट्स व्हाई इट इज कंडक्टिंग मोर. इलेक्ट्रिसिटी इसमें से ज्यादा पास करती है, तो आयंस कंडक्टिविटी डिटेक्ट की जाती है कंडक्टोमीटर से, और जितने ज्यादा आयंस कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होएगा. कोवेलेंट रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस निस्बतन स्लो होते हैं. रीजन क्या होती है? क्योंकि उनके आयंस नहीं बनते. सो आयंस जब कम हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन भी निस्बतन स्लो हो जाता है. नेक्स्ट है जी रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड, दैट इज यूजिंग रिफ्रैक्ट्रोमीटर, और जिसमें यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग इन फिजिक्स एज वेल, जहां पे आप पढ़ते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो होती है, दैट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. या अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी एक मीडियम में और वैक्यूम में वेलोसिटी की जो रेशियो होती है, दैट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जितने चेंज ज्यादा हो रहा है उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा. सो नेक्स्ट वन इज डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, जिसमें apparatus जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है दैट इज डायलेक्ट्रोमेटर, और चेंज इन वॉल्यूम पे जो चीज डिपेंड कर रही है. फॉर एग्जांपल इनिशियल वॉल्यूम आपके पास, जिस तरह अभी एग्जांपल दे रहा था आपको एसिड बेस टाइट्रेशन की, वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो जितना चेंज ज्यादा आ रहा है और जितना जल्दी चेंज आ रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, सो उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होएगा. एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिकल रोटेशन मेथड. ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना है हमने. ऑप्टिकल मींस ऑप्टिकल लाइट्स के लिए यूज की जाती है ना टर्म. रोटेशन मेथड, रोटेशन यहां पे लाइट को हम यूज कर रहे हैं, रोटेशन एंगल रोटेट होएगा. ठीक है. पोलरीमीटर यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट इस मेथड में, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन की. होता क्या है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है दैट फॉल्स ऑन अ मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल जो सब्सटेंसेस यूज किए होते हैं एंगल को रोटेट करते हैं. लाइट का जो एंगल होता है इट रोटेट्स. सो रोटेशन जितनी ज्यादा होती रहती है इट वेरीज द रेट ऑफ रिएक्शन. सो वी कैन से कि ऑप्टिकल रोटेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन of light. और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है. सो विद दिस वी हैव कवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ मेथड, और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड रिएक्शन काइनेटिक्स के जो MDCAT में डायरेक्टली असेस किए जा सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू वेरी मच.